Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and every one of the class 12 student present on that side on the same platform of the Live Physics VK channel. So here we are present. So you all know that we were dealing on the class 12 unit number 2, which was the electricity. And in the electricity we have discussed or we started the part 2 of the electricity जो हम लोगों ने classify किया था. And in that part 2 we started or we completed the Kirchhoff law. We do the numericals of the Kirchhoff law. We done the application of the Kirchhoff law, means on the Wheatstone bridge. We done the one of the most important application of Wheatstone bridge, which was the meter bridge. Now at the end, or you can say we are at the end of the electricity. हम electricity के end point पे पहुंच गए. I'm not saying that this video is being the end of the electricity, but हम लोग उसके end points पे लगभग पहुंच ही गए हैं. And this end, or you can say the final lengthy topic of this chapter is potentiometer. So ये आज हमारा और हमारा एक last topic है जो आज शायद खत्म नहीं होगा. It would might take the next lecture also. But this would be our last topic जो हम लोग start करने वाले हैं, and the name of the topic is potentiometer. So let's start with that. So what is the potentiometer? So if we go with the definition of that, so I am writing here potentiometer. It is an electrical device. What? It is an electrical device which is used to measure unknown EMF, or you can say the potential difference of the battery. So it is used to measure the unknown EMF without drawing the current from circuit. This is the most important thing, and this is the good thing about this device. Okay, so this is the device which is used to measure the EMF or the potential difference. ये वो device है जो आपको potential difference measure करके दे सकता है. But the most important line, without drawing the current from the circuit, means circuit से कोई current consume किए बिना. Okay, you all know that there is one more electrical device which is used to measure the voltage or the potential difference. एक और device है जिसे हम लोग voltage या potential difference measure करने के लिए use करते हैं. What is that device? Voltmeter. Yeah, हम लोग इसे 10th क्लास में भी पढ़ते हैं और during this 12th class electricity भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की है. So voltmeter क्या है? You all know that. It is an electrical device which is used to measure the potential difference or the voltage. But during the time period जब वो voltage measure करता है, और from the class 10th you all know that voltmeter is always made up of high resistance. तो voltmeter हमेशा high resistance का बना होना चाहिए, because we all know that if I give you the basic idea that V is being directly proportional to R. So resistance effect जितना ज्यादा होगा voltage उतनी ही ज्यादा वो consume करेगा, उसके पास उतना ही ज्यादा voltage जाएगा. किसके पास? I am talking about this device. और जितना voltage इसके पास जाएगा ये reading उतना ही ज्यादा दिखाएगा. Okay, how the voltmeter works, वो reading कैसे दिखाता है, this will be our next chapter. ये हमारे next chapter में आएगा when we construct the voltmeter. जब हम लोग next chapter magnetic effect of the current में हम लोग voltmeter बनाएंगे. So in that time or at that time you will get the basic idea and the clear idea about the voltmeter. But अभी के लिए अगर हम overview में जाएं, so voltmeter is a device which is used to measure the potential difference or the voltage, but with consuming some current को consume करता है because it have some high resistance, और high resistance है तो some amount of heat energy get dissipated, कुछ voltage और कुछ energy या कुछ amount of work done आपका heat में dissipate हो जाता है. So if I give you the basic and the direct idea that this voltmeter always gives you the value slightly less as comparison to the actual voltage. मान लीजिए if we have a bulb and this bulb has a 10 volt potential difference
and we want to measure what is the voltage across the bulb. हमें नहीं मालूम, फॉर एन एग्जांपल 10 वोल्ट है, बट हम इसका वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कनेक्ट द वोल्टमीटर इन पैरेलल. डेफिनेटली हम वोल्टमीटर को कहां लगाएंगे, पैरेलल में, बिकॉज़ इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज सेम. तो जितना वोल्टेज इसके पास है उतना ही वोल्टेज इसके पास जाना चाहिए. तो व्हाट शुड बी द रीडिंग, दैट वोल्टमीटर शुड गिव 10 वोल्ट देना चाहिए. दैट्स गुड थिंग. बट वोल्टमीटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ व्हाट, हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट. मीन द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर हमेशा बहुत ज्यादा हाई होता है. तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो कुछ ना कुछ तो हीट ये बनाएगा ही बनाएगा. क्योंकि अगर आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आप हीट तो बनाएंगे, बिकॉज मोर बी द रेजिस्टेंस, मोर बी द ऑब्स्टिकल्स, मोर बी द कॉलिजन. Collision between what? अगर if you remember the heating effect, collision between the moving charge particle means moving electron and the ions. और उस collision में जब energy transfer होगा, the ions get start vibrating and heat get produced. तो इसका मतलब कुछ amount of energy heat में dissipate हो गया, जो हमें show नहीं हुआ, जो हमें दिखाई नहीं. तो जो बच गया, let's suppose कितना बचा, 9.7 वोल्ट. 0.3 वोल्ट heat में lose हो गया. 0.3 वोल्ट, वोल्ट मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो मतलब 0.3 अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज हीट में डेसिपेट हो गया. सो रिमेनिंग 9.7 जो शो करेगा. सो एक्चुअल कितना है, 10 वोल्ट, और देगा कितना, 9.7 वोल्ट. ओके, बट हाई रेजिस्टेंस इसलिए रखना जरूरी है बिकॉज जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ये उतनी ही ज्यादा वोल्टेज अपने अक्रॉस ले सकता है. तो ये भी मैटर करता है. तो अगर मुझे 10 की 10 वोल्ट चाहिए तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपकी हीट एनर्जी डेसिपेट होगा. इट मींस वोल्टमीटर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देता है, बट नॉट नेवर और मींस एवरी टाइम वो आपको हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं देगा. एक्यूरेसी माइट बी 98%, बट 100% करेक्ट वैल्यू नहीं देगा. So the value measured by the voltmeter is always slightly less than the actual. तो अब इस प्रॉब्लम को क्या सॉल्व किया जाए, एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम लोगों ने एक न्यू डिवाइस को डिस्कस किया, एंड दैट न्यू इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पोटेंशियोमीटर. मींस द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर अननोन ईएमएफ और अननोन पोटेंशियल. लेट इट बी राइट, पोटेंशियल, but without drawing the current. Means the time during which it is going to give us the value of the unknown EMF. जब ये unknown EMF का value देने वाला या provide करेगा, during that time period there would be no current as being flowing through the circuit. उस time circuit से कोई भी current flow नहीं हो रहा होगा. How it is being going to happen? चलिए इस चीज पे वर्कआउट करते हैं. And for that, let us first of all understand the working principle. Please, for this moment, पहले एक बार इस पे ध्यान दे लेते हैं. Let's try to have or let's try to discuss on the working principle. Means how or on which principle it is being working. So first of all, what is the working principle? That it works on principle that potential drop, potential, or you can say voltage drop. Okay, here I am using a word drop. I will explain what is the meaning of that. So it says that the potential drop or the voltage drop across the wire is directly proportional to length small l of wire. Means voltage कितना drop होगा, कितना गिरेगा, it is being directly proportional to the length of a wire having uniform cross section and constant current through it. Please, first of all, we will write the statement, then we will try to explain, और तब हम उसके बाद इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे. So what is the basic principle behind it? इसके पीछे का basic principle क्या है? The principle state that
it works on the principle that the voltage drop मीन्स कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो इस बार हम लोग वोल्टेज को गिराने वाले हैं। बेसिकली द इंटेंशन, हमारा इंटेंशन है कि वी आर गोइंग टू ड्रॉप द वोल्टेज। सो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वायर, सो एनी वायर जो अभी हमें अवेलेबल होगा उस वायर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट हैज बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मींस इफ वी टॉक मैथमेटिकली, वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मींस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वायर के अक्रॉस, इट इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मींस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए। मींस एरिया शुड बी कांस्टेंट। मींस वायर शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। मींस वायर का एरिया हर जगह बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वायर का एरिया ज्यादा है और यहाँ पे नैरो है, बहुत कम है। So wire should not be taper like, इसे टेपरिंग बोलते हैं कि यहाँ पे ज्यादा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो wire should be of uniform cross section and the constant current flow through it. Means what is the principle says कि if area is constant, अगर वायर का एरिया कांस्टेंट है और वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, then voltage drop is directly proportional to length. And when this proportionality sign removes a constant k here, क्या आता है यहाँ पे? Constant. And this constant is called as potential gradient. What we call this as a potential gradient, and its formula will become k is equal to voltage drop by length. So what is this k stands for? This k stands for potential gradient. तो potential gradient क्या बताता है? So it gives, or what it gives you the idea. So it shows voltage drop per unit length. क्या बताता है ये कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा यूनिट लेंथ के लिए। So if someone asks you what is the definition of potential gradient, it gives the idea कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, दिस इज द स्टार्टिंग। अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। सो व्हाट वी गेट टू नो, अभी के लिए हमें क्या पता चला कि वोल्टेज ड्रॉप इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट व्हेन द एरिया ऑफ द वायर इज कांस्टेंट एंड करंट इज कांस्टेंट। तो चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं, ये कहां से आया एंड व्हाट डज इट गिव्स द आइडिया, और इसका रेफरेंस क्या है। सो द रेफरेंस ऑफ दिस रिलेशन इज ओम्स लॉ। सो सीधा सा बात है, हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का हार्ट है ओम्स लॉ। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले भी बताया था, एंड इट इज गोइंग टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सो फॉर दिस रिलेशन, इस प्रिंसिपल का मेन रेफरेंस कौन है? ओम्स लॉ। सो वी ऑल नो दैट ओम्स लॉ, V is equal to I into R. We all are familiar. I stands for current and R stands for resistance. But what is the resistance? Resistance is rho L by A. We all know that. Now check this out. पहले इस टर्म को ध्यान दीजिए, I rho by A. What is I stands for? I stands for the current. तो हमने उसे करंट को क्या रख दिया? Constant. We placing a condition. So ये तभी काम करेगा जब आपके पास ये दोनों conditions satisfy हैं. So current should be constant, area should be constant. And what is the meaning of rho? Here the rho represents the resistivity of wire. And we all know that resistivity depends upon the nature of material. Okay, one more thing on which the resistivity depends. Can you recall me? क्या बता सकते हैं किस और factor पे resistivity depend करता है? Yeah, temperature पे. But absolutely, ये चीज तो हमेशा होगी, because if I am saying Ohm's law, if I am using that, I am using which law? Ohm's law. अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं Ohm's law को use कर रहा हूँ, so it means is that कि Ohm's law की condition satisfy है। और अगर आप याद करें, what was the condition of Ohm's law? Last में that temperature should be constant and material should be given. Means given material and constant temperature. मटेरियल सेम होना चाहिए ताकि रेजिस्टिविटी सेम हो, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। सो इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन ओनली ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। ये आप जानते हैं। तो इसलिए व्हेन आई से ओम्स लॉ, जब भी हम या कोई भी या आप भी बोलते हैं
that by applying Ohm's law, by applying Ohm's law, जब भी आप ये बात बोलते हो इसका मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर डेफिनेटली कांस्टेंट है, बिकॉज Ohm's law itself means टेम्परेचर कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट, क्योंकि Ohm's law तभी काम करता है जब ये दो फैक्टर हो। तो वो चीज कभी भी इन्वॉल्व या डाउट में मत लेके आना कि सर क्या टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये नहीं बदल सकते। तो बेटा इफ आई से Ohm's law तो डेफिनेटली Ohm's का मतलब ही टेम्परेचर कांस्टेंट है, और इसका मतलब अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट और रो रेजिस्टिविटी, that would be also remain constant because we are applying the Ohm's law, and that's why V is being directly proportional to length. We got a relation that how the voltage relate with the length directly, but this would be directly related if I constant, A constant, rho resistivity वो तो constant ही रहेगा for the Ohm's law के लिए। So it means is that voltage length के साथ कैसे relate है? Directly, but this time we using a word drop। हमें एक वर्ड यूज किया ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स वी आर गोइंग टू डिलाई और वी आर गोइंग टू डिक्लाइन दी वोल्टेज। हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को कम करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू ऐड दी वोल्टेज, वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट दी वोल्टेज। हम यहाँ पे वोल्टेज को सबट्रैक्ट यानी उसे गिराएंगे। अब वो कैसे होगा ये अगर आपको आइडिया दे दूं, सो यू नो दैट इफ आई हैव टू बैटरीज, लेट्स सपोज मेरे पास दो सेल्स हैं, one with the voltage V1, another with the voltage V2. How would I connect? How would I connect both the cells of the voltage V1 and V2 so that the net voltage adds V1 plus V2? अगर मुझे V1 plus V2 बनाना है तो बताइए दोनों वोल्टेज या दोनों सेल्स को कैसे ऐड करूं, कैसे जोड़ूं? How would I connect? So you will say, sir please connect by this manner. What we call, हम लोगों ने इसे पढ़ा था, this is called as opposite terminal connection, or you can say same polarity connection। क्या टर्मिनल कैसे अपोजिट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मींस द नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट सेल शुड कनेक्ट ऑन द पॉजिटिव, यानी दोनों के टर्मिनल अपोजिट हैं, बट जो करंट फ्लो करने का डायरेक्शन है, जो पोलैरिटी है, वो दोनों का सेम है। सो व्हेनेवर द टर्मिनल्स आर अपोजिटली कनेक्टेड, नेट वोल्टेज हमेशा ऐड होता है, but net voltage can subtract हो सकता है। If I ask you in a same question, if I ask you how would you connect both the cells, आप दोनों सेल्स को कैसे कनेक्ट करें so that the voltage decline हो, net voltage कम आए, subtract हो, तो कैसे कनेक्ट करें? You will say, sir connect both the cells by same terminal। कैसे कनेक्ट कर ले? सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर ले, आइदर नेगेटिव विद द नेगेटिव और आइदर पॉजिटिव विद द पॉजिटिव। तो सेम टर्मिनल कनेक्शन, और यू कैन से कैसा पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी। ये कहेगा करंट इधर जाना चाहिए, ये कहेगा करंट इधर जाना चाहिए। तो नेट करंट कहां जाएगा? दैट डिपेंड कि कौन सा वोल्टेज जाता है। रिमेंबर देयर वाज अ न्यूमेरिकल ऑफ 6 वोल्ट एंड 9 वोल्ट हमने डिस्कस किया था। सो द पॉइंट इज दैट हम यहां पे वोल्टेज को गिराएंगे। why we are going to drop? Because we are going to find out the voltage। हम वोल्टेज निकालने वाले हैं, बट सर्किट में से कोई करंट नहीं होना चाहिए। We want the current through the circuit zero, मतलब सेल और बैटरी कनेक्टेड होगा, the cell and the battery are going to be remain connected in the circuit diagram, but in spite they are connecting, फिर भी करंट नहीं होना चाहिए। फिर भी वोल्टेज कैसे निकाले? That is making something interesting। So that's why we are going to drop the voltage, but voltage कितना होगा वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने के लिए क्या करना है? प्लीज कीप इन द माइंड। So to drop the voltage, the two cells or the batteries should be connected with same terminal। ये बात आपको remember रखना है। So first of all, your definition, the device which is used to measure the unknown voltage or potential or the EMF without drawing the current। ये लाइन जरूर आना चाहिए, क्योंकि if you remember यहाँ तक लिखते हैं the device which is used to measure the unknown voltage, तो सर वो तो वोल्ट मीटर भी है, वो भी आपको मेजर करके देता है, बट हम यहाँ पे करंट को कंज्यूम किए बिना करेंगे। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू? सो वी हैव अ वर्किंग प्रिंसिपल दैट वोल्टेज ड्रॉप इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। सो लेंथ के साथ कैसे रिलेट है? डायरेक्टली इफ द वायर हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड करंट इज कांस्टेंट। आई होप यू डन द मैथमेटिकल। के का फॉर्मूला बना के रखिए। ये क्या बताता है? इट शोज द वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। Got it? And how this formula has been come? ये कहां से आया? तो this is the reference of this formula।
ये फॉर्मूला या इस प्रिंसिपल का रेफरेंस यही है, मेन रेफरेंस यही है. यू कैन नोट इट डाउन इन द साइड, आप इसे साइड में मेंशन कर सकते हैं. ओके, डन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर थिंग अबाउट द मैथमेटिकल, कुछ चीजें और मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं. फिर डिवाइस को देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है. तो रिसेंटली वी डिस्कस अबाउट द के, तो हमने के बारे में बात किया. तो चलिए इसके बारे में और चीज लेके आ जाते हैं. सो विल यू प्लीज हेल्प मी आउट. SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. चलिए इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट की SI यूनिट में मेरे को हेल्प कीजिए. सो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर. व्हाट इज दैट? वोल्ट पर मीटर. और अब चीजें थोड़ी सी घूमने वाली है भाई. तो वोल्टेज वोल्ट पर मीटर, तो ये तो काम आ गया भाई कि इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा यूनिट लेंथ में. अब देखिए आप लोग जैसे जैसे चीजें इकट्ठी होती जाती हैं तो चीजें और भी कंफ्यूजिंग होती जाती है. रिमेंबर, इज देयर एनी अदर क्वांटिटी, क्या कोई और ऐसी क्वांटिटी है जिसका SI यूनिट वोल्ट पर मीटर है या वोल्ट मीटर है? वो आपको ढूंढना है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां से लेके आ रहे हैं. और वो क्या है, अगर मैं आपसे जल्दी से अभी रिवाइज करा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड dV/dr. मैग्नीट्यूडली आई एम टॉकिंग रिसेंटली. तो E is equal to dV/dr, so it is volt per meter. अब फंस गए सब. वोल्ट पर मीटर तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, और वोल्ट पर मीटर V ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर लेंथ, तो ये तो SI यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी है. ओके, नाउ द पॉइंट, और चीजें बदल गई हैं बेटा. नाउ द थिंग्स हैज बीन चेंज. सो नाउ अब पेपर में आ जाता है कि वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है. अब आप ऑप्शन हो रहा है, इफ टीचर आस्क यू दैट व्हिच क्वांटिटी हैज द यूनिट वोल्ट पर मीटर, तो आपकी मर्जी है सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है. इफ द टीचर इज गिविंग सम रेफरेंस, अगर टीचर उस न्यूमेरिकल में कहीं पे रेफरेंस दे रहा है लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैट्स, तब आप इसके साथ जाएं. और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो यहीं पे जाएं. और अगर आप मुझे एक बार और रिवाइज करा के दें, वोल्ट मीटर किसके SI यूनिट है? वोल्ट मीटर, इट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट इज E a cos थीटा ना, E वोल्ट पर मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर एंड कैंसिल, वोल्ट मीटर. तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यूनिट्स को प्लीज क्लियरली मेंशन रखना और समझना भी. तो प्लीज ये डाउट और कंफ्यूजन मैं पहले क्लियर कर देता हूं, होगा ये बेटा बाद में. So, what is the SI unit of potential gradient? Volt per meter. और ये क्या चीज बताता है, ये सबसे ज्यादा है क्योंकि it will help you in the numericals. तो in future means in the next lecture जब हम मिलेंगे तो हम numericals के साथ मिलेंगे और ये बहुत हेल्प करेगा. तो K का मतलब क्या है कि कितना वोल्टेज गिरा यूनिट लेंथ में, यानी यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज गिर रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखें. ओके, SI unit is volt meter, but for the numerical purpose, if I discuss numerically, हम लोग शायद इसे वोल्ट पर सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं. इन फ्यूचर हो जाएगा, इट इज योर चॉइस. अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो SI यूनिट वुड बिकम वोल्ट पर सेंटीमीटर, और अगर आप लेंथ को मीटर में रखना चाहते हैं वुड बी वोल्ट मीटर. डन. नाउ वन मोर थिंग जो मैं बिफोर गोइंग टू द डिवाइस में डिस्कस करना चाहता हूं, एंड दैट थिंग इज वेरिएशन ऑफ V ड्रॉप वर्सेस L. वोल्टेज ड्रॉप वर्सेस लेंथ का ग्राफ कैसे जाएगा? तो हाउ द वोल्टेज ड्रॉप रिलेट विद द लेंथ? डायरेक्टली, इफ करंट इज कांस्टेंट एंड एरिया इज कांस्टेंट, सो इट इज बीइंग V drop by length and graph is being directly, so it would be a straight line. That's the good thing. अब बात करते हैं सीखने में. तो फिर से वही बात बेटा जो मैंने आपको इस तरीके से पहले भी सिखा चुका हूं, V drop is equal to K. Since the graph is being a straight line, so for straight line, चलो थोड़ा सा मैथमेटिकल फिर से जाते हैं. So for straight line, what is the equation? Y is equal to mx plus c, where y represents y-axis, x represents x-axis, m means slope and c means intercept. Now, if we compare these two equations, अगर हम इन दोनों equations को compare करें, if we try to relate both of them, so what is the intercept that you are getting? आपको intercept क्या मिल रहा है यहाँ पे? So what is the intercept here बेटा? C कितना? 0. And what does it implies?
it will imply that कि ग्राफ origin से शुरू होगा. Now second thing, if we compare, so what is the slope of voltage drop versus length? का ग्राफ का स्लोप हमें क्या बता रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, that the slope of this graph always gives you the information about the potential gradient. तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें ये सिखाएगा कि हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका है, कितना है. मींस जो भी स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ के. हाउ? आपने कंपेयर कर लिया, एक्स एक्सिस पे लेंथ है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज ड्रॉप है. सो ये चीज आपको भी और सीखना है, दैट इफ वी गॉट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस को मिलते हैं वेयर द ग्राफ स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स सम इंफॉर्मेशन, तो क्या इंफॉर्मेशन देता है, प्लीज यूज दैट रिस्पेक्टिव फॉर्मूला एंड कंपेयर दैट रिस्पेक्टिव फॉर्मूला विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. आई होप यू आर गेटिंग दैट. ये चीज हम लोगों ने पहले भी किया है. हम लोगों ने सेल पे V वर्सेस I का ग्राफ बनाया था तो भी काम किया था, ओम्स लॉ के ग्राफ पे भी काम किया, कंपैरिजन द टू मटेरियल, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, कैपेसिटेंस को कंपेयर करना, और ये चीज आगे भी चलती रहेगी. आई होप यू गेट इट. सो दिस इज द ग्राफ एंड द वेरिएशन ऑफ व्हाट, द पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस वोल्टेज ड्रॉप का ग्राफ और उसका वेरिएशन एंड द इंफॉर्मेशन that we are getting from the graph. हमें ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि इंटरसेप्ट क्या होगा, 0. इट मींस ग्राफ कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से. सेकेंड, और v ड्रॉप वर्सेस लेंथ का स्लोप हमें किस चीज की वैल्यू देगा, k की वैल्यू. नाउ द पॉइंट अराइजेस, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करना चाहता हूं, दैट व्हाट डज दिस k इन्फॉर्म. हमें ये k क्या बताता है, वो तो हमने लिख दिया, दैट इट शोज हाउ मच वोल्टेज इज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. बट इससे भी हमें क्या पता चलेगा, चलिए उस छोटी सी पॉइंट को और पढ़ लेते हैं. एंड दैट पॉइंट इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. ठीक, चलिए इसके बारे में बात करते हैं. तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसको मैं आपको मैथमेटिकली लास्ट में करके दिखाऊंगा, लास्ट में, बट अभी केवल आपसे इसका डिस्कशन कर रहा हूं. सेंसिटिविटी मींस the ability of any device to give or to show the variation जिसके लिए वो बनाया गया है for the small change in the input values. यानी जब भी आप किसी भी डिवाइस में कोई इनपुट डालते हैं तो वो डिवाइस आपको एक आउटपुट देता है. दैट इज द गुड थिंग. हम इनपुट डालते हैं सम फॉर्म ऑफ एनर्जी और आउटपुट किसी अदर फॉर्म में हमें मिलती रहती है. तो पॉइंट इज दैट कि अगर आप लोग स्मॉल इनपुट भी डालते हैं, इफ यू डू द स्मॉल इनपुट, या आप इनपुट में थोड़ा सा चेंज करते हैं, दैट डिवाइस इज शोइंग द चेंज इन द आउटपुट. अगर आपने स्मॉल इनपुट में चेंज किया तो आउटपुट में भी चेंज आया. इसका मतलब दैट डिवाइस कैचेस, और दैट डिवाइस ने आपको इन्फॉर्म किया कि यस यू आर चेंजिंग द इनपुट. उसने मुझे कैच करके बताया, या इनपुट चेंज किया है यार इसने. मींस वो इनपुट चेंज हुआ तो वो स्मॉल से स्मॉल चेंज को भी डिटेक्ट करके हमें आउटपुट दिखा सकता है. दिस इज कॉल्ड एज अ सेंसिटिविटी. इसे क्या बुलाते हैं, सेंसिटिविटी. इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बट आई वांट टू एक्सप्लेन द सेंसिटिविटी. मींस जब भी आपने स्मॉल इनपुट दिया बट आउटपुट वो आपको अच्छा दिखा रहा है, आपको चेंज दिखा रहा है, और यू आर डिटेक्टिंग दैट, दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी. और ये चीज हम अपनी क्लास में भी यूज करते हैं. Means if I give the or take the example of two student, there is a one student, okay, एक student है and उस student को आप कितना भी बोल लो, कितना भी input डालो, डाल दो, हर बार वही activity रहती है. Means कोई फर्क नहीं पड़ता. कहते हैं ना, बिल्कुल एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया. ओके, सेकंड स्टूडेंट जिसे आपने थोड़ा सा डाटा तो उसने कुछ ज्यादा ही फील कर लिया. लेट्स सपोज उस क्लास में थोड़ा इमोशनल हो गया, क्राई करने लगा, या फिर वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया, तो थोड़ा सा बोलते ही वो उस चीज को बहुत ओवर रिएक्ट करके आउटपुट दिखा रहा है. तो दो स्टूडेंट ने, एक को इनपुट दिया, कुछ नहीं दिखाया आउटपुट, एक को इनपुट दिया बट आपको आउटपुट कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखा रहा है. तो व्हाट वी कॉल, इन दोनों में से स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, इन दोनों में से मोर सेंसिटिव कौन है, हम लोग स्टूडेंट 2 को कहेंगे. स्टूडेंट यार तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, छोटी बात को भी इतना ज्यादा वो कर लेते हो. यूज करते नहीं ये वर्ड कॉमन लाइफ में, दैट आप यू आर वेरी मच सेंसिटिव, कि आपको छोटी सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट कर जाना है, बहुत सेंसिटिव बंदा है यार तू. दैट इज द सेम थिंग.
कि आप स्मॉल इनपुट के रिस्पेक्ट में अगर आप आउटपुट दिखाते हो, दैट इज द सेंसिटिविटी। और हर डिवाइस में ये चीज होनी चाहिए, बिकॉज पोटेंशियोमीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस, वो वोल्टेज नापने वाला डिवाइस है। अब वो वोल्टेज कैसे नापेगा, हाउ इट वर्क, वो हम देखेंगे। बट अगर वो स्मॉल से स्मॉल वोल्टेज भी अगर नाप सकता है, इफ ही इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग स्मॉल वोल्टेज, अगर आपने वोल्टेज में थोड़ा सा भी चेंज किया, पहले आपके पास वोल्टेज थी 5 वोल्ट, नाउ यू आर चेंजिंग द वोल्टेज टू द 5.1 वोल्ट, अगर उसने उस 5.1 वोल्ट जो आपने इनपुट डाला उसमें भी अगर उसने मेजरिंग करने में चेंज दिखाया और आपको मेजर करके दिया, तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छा डिवाइस है, स्मॉल वोल्टेज चेंज किया तो भी दिखा रहा है, तो ये तो बहुत सेंसिटिव है। बट एक ऐसा डिवाइस लिया जिसमें आपने वोल्टेज तो चेंज की 5 से 5.1 और आउटपुट जैसा पहले था अभी भी वैसे का वैसे ही है, तो दैट इज इनसेंसिटिविटी। सो दैट इज द पॉइंट जो आपको समझना है, दैट विद ऑल द डिवाइसेस सेंसिटिविटी मैटर्स, हर डिवाइस के लिए सेंसिटिविटी मैटर करती है। हाँ, इसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जब हम उस डिवाइस की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हम उसे एफिशिएंसी का नाम दे देते हैं, वही चीज की हम लोगों ने एफिशिएंसी। ओके, जब हम मेजरिंग के बारे में बात करते हैं कि वो मेजर कैसे करता है, तो हम उसे सेंसिटिविटी का नाम देते हैं। ओके, दोनों टर्म अलग हैं, बट कहीं ना कहीं वो उस डिवाइस की परफॉर्मेंस या उसकी कैपेबिलिटी के बारे में बताता है। तो जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा ना, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, ओके, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में, तो वो उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। ऐसे ही इन्हीं डिवाइस की, इलेक्ट्रिकल डिवाइस की परफॉर्मेंस को हम सेंसिटिविटी से नापते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे बाद में, बट आई होप यू गॉट इट। So now please note it down, the SI unit graph, what is the information that you are getting from the graph, और sensitivity के बारे में हम लोग एंड पर लिखेंगे। ओके, now we are going to jump on, अभी हम लोगों ने एक रफली आइडिया लिया कि डिवाइस क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मैथमेटिकली थोड़ा बहुत आया। Now let's start with the device actually कैसा दिखेगा प्रैक्टिकली, ओके, क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, उसका थ्योरी क्या है, उसका मैथमेटिकल एवरीथिंग। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन डायग्राम एंड कंस्ट्रक्शन। चलिए कंस्ट्रक्शन और डायग्राम पे स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज, यहाँ पे ध्यान देना प्लीज, वी हैव फर्स्ट टर्मिनल, ओके, with that terminal we have a battery is being connected, okay, as you know that in the books अलग अलग नाम दिए जाते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था we will try to study in those manner जो हमें समझ में आए। so I personally used to call this as a main supply, हम लोग इसे क्या बुलाएंगे, main supply, okay, this main supply has its own key, इसका अपना एक की है K, okay, this key is being connected to a variable resistance, we call this as a rheostat, okay, and this end of the rheostat is connected to the another terminal, तो ये दूसरे टर्मिनल के साथ है। so main supply, K, key, rheostat, तो ये आपका rheostat हो गया, and this is your end terminal। let's suppose the name of this terminal is A and name of this terminal is B। now from A to B we have wire, हमारे पास एक वायर कनेक्टेड है, ओके, इन दिस मैनर। चेक दिस आउट, यहां से गए यहां, फिर यहां पे वापस, ओके, सो वी हैव दिस वायर व्हिच इज बीइंग कनेक्टिंग A and B, वी कॉल दिस वायर एज अ पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बुलाएंगे इसे, पोटेंशियोमीटर वायर। and this wire should have same high resistivity and low temperature coefficient। क्या होना चाहिए इस वायर पे, इस वायर का रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए और टेम्परेचर कोएफिशिएंट शुड बी लो, मींस दिस वायर शुड बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल जो हम लोगों ने मीटर ब्रिज के लिए यूज किया था। एंड व्हाट वाज दैट मटेरियल, कांस्टेंटाइन और मैंगनीज। सो प्लीज रिमेंबर द वायर ऑफ मीटर ब्रिज, जो मीटर ब्रिज का वायर था ना, रिमेंबर द वायर व्हिच इज कनेक्टिंग बिटवीन पॉइंट ए एंड बी,
एंड हेयर द सेम थिंग, मैंने जानबूझ के वही दो पॉइंट लिए ए एंड बी ताकि हम लोग उस चीज को रिजेंबल रखें, कंपेयर करके स्टडी। एंड दैट वायर इज आल्सो मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। एंड व्हाट आर दैट मटेरियल? दैट alloy constant and manganese of high resistivity and low temperature coefficient. Why the temperature coefficient should be low? ये चीज मैं आपसे ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं, that the small change in temperature, जब टेम्परेचर में चेंज आएगा, so with the change in temperature the change in resistance would be small. तो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस तो चेंज होता है, बट अगर वो रेजिस्टेंस में चेंज वेरी स्मॉल आए तो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट लॉ कॉल किया जाएगा। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा तो करंट थ्रू द सर्किट सेम ही फ्लो करता रहेगा, जो पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल का कंडीशन है, दैट आई शुड बी कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं आना चाहिए ज्यादा। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द लेंथ, सो द लेंथ ऑफ दिस वायर कैन गो फ्रॉम 1 मीटर टू 10 मीटर। प्लीज, दिस इज द स्लाइटली डिफरेंट जो चीज मीटर ब्रिज में और यहाँ पे, ओके, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, काम करने का तरीका अलग है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज वाज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, and it was working on the principle of the what? Balance condition of Wheatstone bridge. But on the other side, the potentiometer, इसका काम है unknown EMF को measure करना without drawing the current. और working principle, voltage drop is directly proportional to length if area is constant and current is constant. So concept और बाकी चीजें अलग है, बस एक चीज similarity है, that similarity is nature of wire. Meter bridge wire was also made up of same material और potentiometer wire भी उसी material से बनता है। But there is one more difference जो आपको ध्यान में रखना है, the length. Meter bridge wire is always of 1 meter. तो आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। ओके, मीटर ब्रिज का एक डाउट आया है, वो डाउट मैं आपको वीडियो के एंड में आपके साथ एक स्लाइडली डिस्कस करूंगा। बट द पॉइंट इज दैट मीटर ब्रिज वायर वाज ऑलवेज 1 मीटर। और आप लोग न्यूमेरिकल से गए हैं, और जब आप लोग न्यूमेरिकल से गए हैं, सो यू हैव सीन दैट कि देयर वुड बी ओकेजनली, बहुत रेयर चांस होगा कि जहां पे आपको मीटर ब्रिज वायर की टोटल लेंथ गिवन हो, दैट अ मीटर ब्रिज वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, बहुत ओकेजनली मिला होगा। बट आउट ऑफ 10 न्यूमेरिकल्स में से कोई एक न्यूमेरिकल में ऐसा मिला होगा। देयर इज वेरी वेरी रेयर चांसेस ऑफ हैविंग दैट, बट बिकॉज इट इज ऑलवेज बीन 1 मीटर। बट ऑन द अदर साइड, पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ कैन वेरी फ्रॉम 1 मीटर टू 10 मीटर। तो इसका लेंथ 1 मीटर से लेके 10 मीटर तक जा सकता है। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर फ्रॉम हियर टू हियर एज अ 1 मीटर। तो मैं यहाँ पे 1 मीटर हो गया, 1 2 3 4। तो टेक्निकली इफ आई आस्क यू, और इफ मैं आपसे अगर बात करूं, तो अभी हम लोगों ने जो पोटेंशियोमीटर वायर लिया है, यहां से शुरू हो रहा है कांस्टेंट 10 और मैंगनीज। ओके, यहां के बाद हमारा वो कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर जो हम जनरली यूज करते हैं कॉपर का, तो कॉपर वायर यूज कर रखा है कनेक्टिंग के लिए। बट ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। सो कितना मीटर का है? 4 मीटर अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, बट इट कैन चेंज फ्रॉम 1 मीटर टू 10 मीटर। ओके, दीज आर योर व्हाट? कॉपर स्ट्रिप्स। ये क्या है? हमारी कॉपर स्ट्रिप्स, जैसे हम लोगों ने मीटर ब्रिज वायर में ली थी। एंड व्हाई वी यूज कॉपर स्ट्रिप? We use the copper strip to remove the extra effort और extra changes, जो भी हम लोग extra resistance आ रहा है हमारा, so we can eliminate those extra resistance, because अगर आप लोग यहाँ पे constant 10 और मैंगनीज यूज करते हो तो ये वाली लेंथ भी होगी जो resistance लगाएगी। तो हमें केवल resistance वायर का लेना है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू होगा, फिर उसके बाद resistance should be neglected। बट अब रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज अ कंडक्टर, जो जनरली कॉपर अच्छा है, बट वी आर यूजिंग द कॉपर स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स मींस एरिया इज वाइडर एंड यू ऑल नो दैट द रेजिस्टेंस इज बीइंग इनवर्सली टू एरिया। तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी इनके रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड हो जाएंगे। फिर आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। तो रीजन वही आता है यार। तो ये दो क्वेश्चन मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में सेम बनते हैं। एंड व्हाट आर दोस क्वेश्चन? व्हाई द कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन मीटर ब्रिज और व्हाई द कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर। देन व्हिच मटेरियल वुड यू प्रेफर टू मेक मीटर ब्रिज और व्हिच मटेरियल ऑफ द वायर वुड यू प्रेफर टू मेक द पोटेंशियोमीटर? तो भी क्वेश्चन वही है और रीजन वही है, बस हाँ लेंथ अलग है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान में रख। और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीजें अलग है। लेट्स स्टार्ट विद दैट।
So this was our main supply. ये हमारा कैसा सप्लाई है? मेन सप्लाई. Now at the end A end we are connecting an unknown EMF. What we are connecting? An unknown EMF जिसे हमें measure करना है. This unknown EMF has its own key K1. इसका अपना एक key है K1 and it is being connected with a galvanometer. So you all know that what is the galvanometer? The electrical device which shows the deflection, means magnitude as well as the direction of the current, and the other end of the galvanometer should be connected with jockey. ये क्या हमारा? Jockey. And what is the jockey? हम लोग already पहले से discuss कर चुके हैं. Jockey is like the pen-like structure. Pen की तरह होता है. One terminal is going to connect with the galvanometer, and this side would be a metal strip. यहाँ पे metal होगा. And when we connect that metal strip on the wire, it makes a connection. वो wire के साथ क्या बना गया? Connection. But एक ऐसा connection which is movable. आप बोल सकते हो एक movable connection बना सकता है. तो अगर हम इस connection को स्टार्टिंग में यहाँ कनेक्ट करते हैं तो कनेक्शन यहाँ बन गया. बट आई वांट टू मूव, अगर मैं उसे यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा मूव कर सकता हूँ. सो इट इज बीइंग मेकिंग अ टेम्परेरी कनेक्शन. तो जॉकी क्या बनाता है? इट मेक्स अ टेम्परेरी कनेक्शन, बट एक मूवेबल भी होगा. टेम्परेरी बनाएगा जब तक आप चाहते हैं, और आप उसे स्लाइड या मूव भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस. आपको बार बार वायर को नॉट नहीं करना पड़ेगा. जब भी हम जनरली वायर को कनेक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वायर को नॉट लगा देते हैं. अब बार बार उस नॉट को ओपन करो तो ये पॉसिबल नहीं है. सो वी यूज अ जॉकी टू मेक अ स्लाइडिंग कनेक्शन. तो और कुछ नहीं है. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द पोटेंशियोमीटर. ओके, दिस मेन सप्लाई विद द की, रियोस्टेट एंड पोटेंशियोमीटर वायर. प्लीज ध्यान से, मेन सप्लाई, की, रियोस्टेट एंड द पोटेंशियोमीटर वायर, वी कॉल दिस सर्किट, और आई कॉल पर्सनली, मैं इसको बुलाता हूं, we call this circuit as a primary circuit. क्या बुलाएंगे इसे? Primary circuit. And this circuit which contains the unknown EMF, जिसका हमें EMF नहीं मालूम, ये EMF हमें मालूम है. Main supply कितनी दे रहा है ये हम जानते हैं. But this is the unknown EMF. Its key, galvanometer and jockey. This is called as secondary circuit. So in potentiometer, how many circuits we have? We have two circuits, primary and secondary. Okay, now let's start with dealing with the working पे आते हैं, but उससे पहले diagram and construction clear. So what is the potentiometer wire diagram? ये हमारे सामने. Construction by your own. So construction please आप लोग एक बार खुद लिखेंगे. And how to write the construction? Explain the diagram. So let me revise the construction. That means potentiometer contains two different circuits, primary and secondary. Primary circuit has its own main supply, key and the rheostat, which is being connected across a potentiometer wire, which is made up of either constant 10 or manganese, and its length can vary from 1 meter to 10 meter. Okay, in between the potentiometer wire, copper strips are used. तो वायर के बीच में क्या यूज की गई है? कॉपर स्ट्रिप. अब मैं एक और बता देता हूँ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि लेंथ अगर जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल द लेंथ वाज 4 मीटर. तो आप सोच सकते हो सर एक लंबाई क्यों नहीं बना देते? 4 मीटर का एक वायर ही लगा देते, ऐसे घुमा के क्यों लेके आ रहे? सो दैट इज बिकॉज ऑफ स्पेस बेटा. अगर आप 4 मीटर 10 मीटर का बनाते तो आपका पोटेंशियोमीटर 10 मीटर लंबा बन गया. आप कनेक्शन करने के लिए 10 मीटर लंबे घूमोगे क्या आप लोग लैब में? इमेजिन प्रैक्टिकली. तो हम लोग 10 मीटर के लिए क्या करेंगे? 1 मीटर आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इतना ही होगा. सो 1 मीटर के 10 राउंड लगा लेते हैं. 1 2 3 4. तो आपने इसी स्मॉल एरिया में वो 10 मीटर कवर कर लिया. बट अगर आप उसे स्ट्रेट लेके जाते कोई इश्यू नहीं है. बट दैट द ओनली इश्यू इफ वी टेक द 10 मीटर इन अ वन सिंगल वायर, तो ओनली प्रॉब्लम इज दैट. व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज द प्रैक्टिकली असेसेबल. उसे प्रैक्टिकली फिर असेस कैसे करें, उस पर काम कैसे करें? आप 10 मीटर दूर जाएंगे क्या यहाँ से? ओके, यहाँ पे मेन आपका ये पॉइंट है. अब आप 10 मीटर स्लाइड करते हुए जा रहे हो दूर तक. तो दैट इज द प्रॉब्लम जो होती है. तो दैट्स व्हाई कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन बिटवीन देम. सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी सर्किट. नाउ a secondary circuit which is containing the unknown EMF key K1 and the galvanometer along with the jockey. तो ये इसका क्या है? कंस्ट्रक्शन. and the construction
प्लीज एवरीवन, इट्स बीन रिक्वेस्ट टू कि आप लोग वो अपना एज अ होमवर्क करेंगे। सो ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। डन है ना? लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। चलिए मैं इसकी वर्किंग आपको समझाता हूं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड लेट्स वर्क ऑन दी वर्किंग। चलिए इसकी वर्किंग पे काम करते हैं। ओके, सो आई होप यू हैव ड्रॉन दी डायग्राम। डायग्राम हो गया, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। नाउ आई एम रबिंग दिस रिटन पार्ट। अब मैं रब कर देता हूं ये जो इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, बिकॉज वी रिक्वायर सम स्पेस, बट हमें डायग्राम तो यही चाहिए, तो इसलिए मैं इनको रिमूव कर देता हूं। यहां पे मेंशन कर देता हूं सेकेंडरी सर्किट। Okay, let's start on the working. So first of all, potentiometer works on the principle of voltage drop is directly proportional to length. यानी पहली बात तो हमें voltage drop करना है. So check this out. अगर आपने ध्यान दिया हो, I drawn the diagram. At the A point, we connected the main supply. But which terminal of the main supply is being connected? Positive. है ना? और which connection of the unknown supply यहाँ पे connected है? Positive. Means at the A point पर हमारी अननोन और हमारी नोन यानी मेन सप्लाई के दोनों के ही कौन से टर्मिनल कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल। एंड व्हेन द टू बैटरीज आर बीइंग कनेक्टेड विद द सेम टर्मिनल, ये क्या है? सेम टर्मिनल। फिर से लिख देता हूं बेटा, सेम टर्मिनल मींस अपोजिट पोलैरिटी। इन दैट केस the net EMF is E1 minus E2. Let's suppose it is E1, let's suppose it is E2. Second case, ये चीज भी हम लोग बात कर चुके हैं। If this is E1, this is E2, this is called as what? Opposite terminal. क्या बुलाएंगे इसे? Opposite terminal। और polarity कैसा है? Same polarity. Sorry, polarity is same polarity. In that case, the net EMF is E net is equal to E1 plus E2. So basically ये दो points please note down कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं कर रखे। If you know that, so that's okay. Now, since in this principle हमें वोल्टेज को ड्रॉप करना, अब कहानी आपको क्लियर होता जाएगा। तो अगर हमें वोल्टेज को गिराना है तो डेफिनेटली we have to connect with the same terminal। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, we और I have connected the both the cells or both the battery sources with the same terminal at A point. ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, which is jockey. अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा एग्जांपल से आपसे डिस्कस करता हूं। Let's suppose the main supply is 5 volt. मेन सप्लाई कितना है? 5 वोल्ट है, मान लेते हैं। ओके, unknown supply is 2 volt. For example, okay, I told you that this EMF हमें नहीं मालूम, बट अभी के लिए फॉर एन एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस। तो इस बैटरी का EMF कितना है? 2 वोल्ट और मेन सप्लाई 5 वोल्ट। ओके, दोनों ही A पॉइंट पे कनेक्टेड है, एक एक एंड दोनों का A पॉइंट पे है। और अगर दोनों का एंड A पॉइंट पे है तो इसका मतलब दोनों की वोल्टेज एक दूसरे को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा? The voltage of both will subtract each other. Definitely दोनों की वोल्टेज एक दूसरे को क्या करने वाली है? सब्ट्रैक्ट करने वाली है। अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक द जॉकी। जॉकी लेते हैं और जॉकी को सबसे पहले A पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। सो लेट अस कनेक्ट द जॉकी एट द A पॉइंट। बट हम एक प्रिंसिपल जानते हैं कि वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा वो डिपेंड करेगा लेंथ पे, कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। लेंथ मींस वो लेंथ जिसमें दोनों सर्किट कॉमन है। सो नाउ जब आपने उसे A पॉइंट पे कनेक्ट किया तो देयर इज नो लेंथ व्हिच इज कॉमन इन बोथ द सर्किट। लेट्स सपोज आई इंक्रीज द लेंथ, मैंने जॉकी को स्लाइड किया एंड नाउ द जॉकी इज हियर। जॉकी कहां पे आ गई? यहां पे। लेट्स सपोज जो भी डिस्टेंस आया होगा, अब बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस अगर आपने लेंथ बढ़ा है तो वोल्टेज भी ड्रॉप होगा। तो लेट्स सपोज आपका वोल्टेज कितना ड्रॉप हो गया? 0.5। As soon as I increase the length, वोल्टेज दोनों का गिरेगा क्योंकि दोनों के टर्मिनल सेम है। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ओके, नाउ कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? 0.5। तो चलिए बताइए मेन सप्लाई कितना बचा? हाउ मच लेफ्ट? 4.5 एंड अननोन सप्लाई हाउ मच लेफ्ट? 1.5। तो अभी भी यहां से फ्रॉम द सेकेंडरी सर्किट अभी भी 1.5 वोल्ट का करंट आ रहा है। द करंट इज बीइंग फ्लोइंग
अभी भी सेकेंडरी सर्किट से 1.5 वोल्ट, ओके, लिया कितना था 2 वोल्ट का, बट इसका जो 0.5 वोल्ट है वो इसके 0.5 के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि आपने लेंथ को कॉमन कर दिया। ओके, नाउ लेट्स मोर इंक्रीज द लेंथ, लेंथ को और बढ़ाते हैं। सो मोर बी द लेंथ, मोर बी द वोल्टेज ड्रॉप। चलिए अब वोल्टेज 1 वोल्ट गिर गया, मतलब टोटल 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया। सो व्हाट इज द मेन सप्लाई लेफ्ट, 4 वोल्ट। ओके, मींस आप कह सकते हो 0.5 और बढ़ेगा। अगर टोटल बताऊं तो टोटल 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया। ओके, सो अब कितना बचा इसके पास, 1 वोल्ट। सो इन द सेकेंडरी सर्किट अब आपके पास नेट वोल्टेज कितनी बची, 1 वोल्ट। सेकंड में 1 ही वोल्ट बची क्योंकि इसका 1 वोल्ट और इसका 1 वोल्ट गया और इसके पास अभी 4 वोल्ट है। डन। ओके, चलिए लेंथ को और इंक्रीज करते हैं। लेट्स सपोज योर वोल्टेज इज बीइंग इंक्रीज बाय 1.5 वोल्ट, तो और लेंथ बढ़ाएंगे तो वोल्टेज और गिरेगा, यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर वोल्टेज गिरता जाएगा। Why the voltage is being going to drop? Because both the cells are at the same terminal. ये दूसरा एंड तो नेगेटिव पे जा रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपने और लेंथ बढ़ाया। How much voltage is drop for an example? 1.5। तो बताइए अननोन के पास कितना बचा, 0.5। अननोन के पास कितना बचा, 0.5, और मेन सप्लाई के पास कितना बचा, 3.5। यानी अननोन के पास अभी भी 0.5 है, मींस सेकेंडरी सर्किट के पास अभी भी जान बाकी है, थोड़ी सी जान बाकी है बट है कितना, 0.5। और अगर 0.5 वोल्ट आ रही है तो गैल्वेनोमीटर अभी भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ओके, नाउ लेट्स सपोज और इंक्रीज करते हैं, तो बेल लेंथ को या जॉकी को तब तक स्लाइड करते रहेंगे जब तक, लेट्स सपोज इस बार वोल्टेज कितनी ड्रॉप हुई, 2 वोल्ट गिर गए। ओके, तो अननोन के पास कितना बचा, 0, बिकॉज अननोन के पास टोटल कितना वोल्ट था, 2 वोल्ट। मेन सप्लाई के पास कितना बचा, 3 वोल्ट। अब पॉइंट इज दैट इस पॉइंट पे आके, एट दिस पॉइंट, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज C फॉर एन एग्जांपल, एट C पॉइंट what is the net voltage which is being left in the secondary circuit, means C पॉइंट पर सेकेंडरी सर्किट में कितना वोल्टेज बचा है, कितना वोल्टेज बच गया, 0, क्योंकि बढ़ाते 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 पहले 0.5 गिरी, फिर 1 वोल्ट गिरी, फिर 1.5 गिरी और अब 2 वोल्ट ड्रॉप हो गई। तो अब अननोन के पास तो 0 वोल्ट बचा, हाँ मेन सप्लाई के पास बचा है, तो मेन सप्लाई 3 वोल्ट बचा है, इसे रहने दीजिए, इट डजंट मैटर। बट इसकी तो सारी वोल्टेज गई जो कि इसको गिराने में गई। सो दिस लेंथ, द लेंथ एट विच द गैल्वेनोमीटर शो null deflection, means वो लेंथ जहां पे गैल्वेनोमीटर आपको कुछ नहीं दिखाएगा, we call that length as a, हम लोग उस लेंथ को क्या बुलाएंगे, we call that length as a balancing length। क्या बुलाने वाले हैं उसे, balancing length, the length at which the galvanometer show null deflection। शायद मीटर ब्रिज में भी ऐसा ही हुआ था कि हम लोग जॉकी को स्लाइड करते गए थे और एक ऐसा पॉइंट आया वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, नल कंडीशन, और हमने उस बैलेंसिंग, उस लेंथ को क्या बुलाया, बैलेंसिंग लेंथ। ओके, उसके पीछे का रीजन अलग था ताकि रेजिस्टेंस चेंज हो और वो दोनों के एंड टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम आए, बट हियर द रीजन इज बीइंग डिफरेंट, बट काम वही कर रहे हैं ताकि यहाँ पे नल कंडीशन आए, सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं किया। ओके, की क्लोज है यार, कोई ये बात ना भूलना बेटा। ओके, so balancing length, so at the C point the galvanometer shows no deflection, C point पे galvanometer कोई deflection नहीं दिखा रहा है, तो सेकेंडरी वोल्टेज या सेकेंडरी सर्किट ने अपना कितना वोल्टेज गिरा दिया, 2 वोल्ट जो था। अब बताइए अगर मैं इससे ज्यादा अगर आपकी वोल्टेज या बैलेंसिंग लेंथ को बढ़ाता हूं, इफ आई इंक्रीज मोर, अगर मैं इस लेंथ को और बढ़ाता हूं, क्या और वोल्टेज गिरेगा, वोल्टेज कौन गिरा रहा है, दिस EMF एंड दिस EMF, ये दोनों आपस में एक दूसरे को गिरा रहे थे। अब इसके तो 2 वोल्ट थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए ना। अब इसके आगे अगर आप जाते हो तो जो इसका 3 वोल्ट बचा हुआ है, द 3 वोल्ट व्हिच हैज बीन लेफ्ट इन द मेन सप्लाई, उसको ड्रॉप करने के लिए कौन है, कोई नहीं। मींस फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज को इस तरीके से भी देखें तो इसका 2 वोल्ट था, वो पूरा का पूरा गया, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वोल्टेज ड्रॉप कितना किया आपने, फाइनल, बट कब तक ड्रॉप करना है, जब तक गैल्वेनोमीटर नल कंडीशन नहीं दिखा।
तो जॉकी को तब तक स्लाइड करना है, यू हैव टू स्लाइड द जॉकी ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर टिल द गैल्वेनोमीटर स्टार्ट शोइंग नो डिफ्लेक्शन, जब तक गैल्वेनोमीटर कुछ ना दिखाए, यानी कुछ ना दिखाए मतलब जीरो पे आ जाए। एंड वेयर इज द जीरो ऑफ द गैल्वेनोमीटर? इन द मिडिल। तो जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो पे नहीं आ जाता तब तक आप उसे स्लाइड करते रहिए, और जिस पॉइंट पे आगे उसने उसे स्लाइड करना रोक दिया तो वो उसने वोल्टेज ड्रॉप की। तो कितनी वोल्टेज ड्रॉप की? बैलेंसिंग लेंथ पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल हमने 2 वोल्ट ड्रॉप किया, तो वर्किंग क्या आया हमारे पास? सिंस वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और V drop is equal to KL. So let at length small l, मान लेते हैं कौन सी लेंथ पे? स्मॉल l लेंथ पे गैल्वेनोमीटर shows null condition. Galvanometer shows what? Null condition. It shows null condition here. तो इसका मतलब ये सारी की सारी वोल्टेज आपने ड्रॉप कर दी नल कंडीशन पे, तो ये वो बैलेंसिंग लेंथ है। अब बताइए आपने कितनी वोल्टेज ड्रॉप की? हाउ मच वोल्टेज यू ड्रॉप अकॉर्डिंग टू दैट एग्जांपल? कब तक? जब तक हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन ना दिखा दे। कितनी वोल्टेज ड्रॉप की हमने? टोटल 2 वोल्ट। इससे ज्यादा कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये उठता है Why we can't drop more than 2, और हमने 2 ही ड्रॉप क्यों की? क्यों? क्योंकि सर अननोन के पास 2 वोल्ट ही थी। कहते हैं ना इसका हैसियत ही 2 वोल्ट का था, सीधी सी बात है that this unknown cell has the capability of dropping only 2 वोल्ट। वो बेचारा था ही 2 वोल्ट का, तो गिराएगा 2 ही वोल्ट ना, इससे ज्यादा तो है नहीं। अब ये खुद 2 वोल्ट का है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो इसके 3 वोल्ट गिरा दे? खुद 2 वोल्ट का तो इसके 3 वोल्ट कैसे गिरा सकता है? For an example, if I say that let's suppose there are 2 GANs, 2 ग्रुप हैं, 2 GAN है, ठीक है? तो एक मेन सप्लाई थी, एक सेकेंडरी थी, अलग अलग थी भाई। ओके, तो GAN नंबर 1 5% है, उस GAN में 5 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 जो भी XYZ नाम लेना है, और GAN नंबर 2 में 2 लोग रहते हैं। अब सीधी सी बात है दोनों GAN में लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, और इन द पोटेंशियोमीटर हमारा मकसद इसका दोनों की लड़ाई करवाना है, ठीक है? तो अब तक आप लोगों को सिखाया गया होगा ना 2 लोगों में, 2 चीजों में कभी भी लड़ाई नहीं करवानी चाहिए। तो मैं आज आपको कहूंगा प्लीज यहाँ पे दोनों की अच्छे से लड़ाई करवानी है, दोनों को भिड़वाना है, एक दूसरे को तब तक लड़ाई करवानी है दोनों एक दूसरे में से कोई मर ना जाए ना, तब तक लड़ने दो। तो थोड़ा सा क्रूल बनना है इस बार, थोड़ा सा क्रूल बनना है। तो हम लोग इसकी वोल्टेज को ड्रॉप करने का कोशिश करेंगे। तो इसका 2 वोल्ट, इसके पास 2 आदमी है, इसके पास 5 है, तो इसका एक आदमी आया, सो 1 पर्सन ऑफ दिस GAN ने इसके एक आदमी को मार दिया, ठीक है? तो एक आदमी को मार देगा, तो मतलब दोनों आपस में लड़ाई में बिजी हो गए, ये समझ लो। ओके, और बेसिकली 1 कैंडिडेट कैन होल्ड, और एक ही आदमी के साथ लड़ सकता है। प्लीज रियलिटी पे बात करते हैं, कोई इट इज नॉट रजनीकांत मूवी, कोई साउथ की मूवी नहीं है भाई, ठीक है? पहली बात बताता हूँ, और बॉलीवुड भी आजकल लगभग कुछ ऐसी आ गई है, तो बहुत सारी मूवीज है, तो सीधी सी बात मैं बोलूंगा एक रियल फेस पे रखते हैं, कोई रजनीकांत की मूवी नहीं रखते कि एक हीरो आया और उसने 10 लोगों को या 50 लोगों को एक साथ मार दिया, जो साउथ में बेसिकली होता है, ठीक है? वैसे अच्छी लगती है, बट ये थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल सा लगता है। तो यही सोचना है कि एक आदमी एक को ही मारेगा। याद है वो आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट इन द डुअल नेचर, that one photon can eject only one electron, वो एक का पर्पस रखना है यार। तो 1 वोल्ट 1 वोल्ट को गिरा सकता है, तो इसके एक आदमी ने इसका एक आदमी गिरा दिया, तो बताइए इस गैंग में कितने आदमी बचे? एक ही आदमी बचा। इस गैंग में अभी भी 4 आदमी बाकी हैं। चलो ये आगे गया और इसने इसको साथ लड़ाई कर लिया, दोनों की लड़ाई हो गई। बताओ इस गैंग में कितने आदमी बचे? 0, और इसमें 3। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों ने कितने आदमी ड्रॉप किए, कितने आदमी मरवा दिए, या कितना वोल्टेज ड्रॉप किया? कितने वोल्टेज ड्रॉप किए? 2। बट टेक्निकली आप उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप करोगे जितने आपके गैंग में, यानी आप उतने ही लोग, आप मेन सप्लाई का उतना वोल्टेज गिरा सकते हो जितनी आपकी गैंग में आदमी होंगे। अगर आपकी गैंग में, इन योर गैंग लेट्स सपोज आपकी गैंग में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। सामने वाले की मेन सप्लाई में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं।
तो आप मेन सप्लाई के 5 लोग मार सकते हो। तो पॉइंट इज दैट टेक्निकली वोल्टेज ड्रॉप उतना ही होगा जितना आपका ईएमएफ होगा। अगर इस सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है तो ये मेन सप्लाई का 2 वोल्ट ही ड्रॉप कर सकता है। तो सीधी सी बात है, जितना वोल्टेज गिरेगा उतना ही अननोन ईएमएफ होगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ गया? ईएमएफ इज इक्वल टू के इंटू एल। ईएमएफ का फॉर्मूला के इंटू एल, बिकॉज ईएमएफ उतना ही होगा न्यूमेरिकली जितना वोल्टेज हम गिराएंगे। किसकी? मेन सप्लाई की। किसकी हेल्प से? अननोन सप्लाई की हेल्प से। चलिए आपसे एक बार फिर से पूछता हूं, लेट्स सपोज इस बार अननोन है भाई, अननोन है, नहीं बताया मैंने, ठीक है। आपने बैलेंसिंग लेंथ बढ़ाई, क्या बढ़ाया? लेंथ बढ़ाया, तो वोल्टेज गिरा, तो डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हुआ बट जीरो पे नहीं आया, ठीक है। तो पहले डिफ्लेक्शन 2 पे था, फिर थोड़ा और सप्लाई बढ़ाई तो डिफ्लेक्शन और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और फाइनली जीरो आ गया। सो व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज नल कंडीशन, जब गैल्वेनोमीटर ने कुछ नहीं दिखाया, व्हेन इट शोज नल कंडीशन, तो आपने वोल्टेज ड्रॉप की, कितनी की? K इंटू एल। K मींस पोटेंशियल ग्रेडियंट, कितनी वोल्टेज हम गिरा सकते हैं इस पूरी लेंथ पर। सीधी सी बात ये है, वो मैं न्यूमेरिकली आपको बताऊंगा। तो हम कितनी वोल्टेज गिरा सकते हैं वो डिपेंड करेगा K पे, और L हमारी लेंथ। तो लेट्स सपोज बाय कैलकुलेटिंग दैट हमें पता चला, वी गेट टू नो दैट कि हमारे इस अननोन ईएमएफ में, मुझे नहीं मालूम इस बार इसका ईएमएफ कितना है, बट हमें पता चला कि बिफोर मींस व्हेन इट्स रीच डाउन टू द नल कंडीशन, जब गैल्वेनोमीटर नल कंडीशन दिखा रहा है, एट दैट पॉइंट इस अननोन ईएमएफ ने 4.5 वोल्ट ड्रॉप की। कितना वोल्टेज ड्रॉप किया? 4.5 वोल्ट इसने ड्रॉप कर दिया। मुझे नहीं मालूम इसका ईएमएफ कितना है, बट जब तक गैल्वेनोमीटर नल कंडीशन पे पहुंचा, जब सेकेंडरी सर्किट में कुछ नहीं बाकी था, तो करंट कितना है सेकेंडरी सर्किट में? जीरो। तो दैट वाज द कंडीशन ना। इट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन ईएमएफ व्हेन द करंट थ्रू द सर्किट इज जीरो। ये अननोन ईएमएफ को मेजर करने में हेल्प करेगा जब करंट ही नहीं होगा सर्किट से। तो सेकेंडरी सर्किट में कुछ करंट नहीं है क्योंकि आपका गैल्वेनोमीटर नल कंडीशन दिखा रहा है। तो आपने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया? 4.5। तो बताइए अननोन ईएमएफ कितना रहा होगा? बताओ अननोन ईएमएफ कितना होगा जब हमने ड्रॉप कितना किया? 4.5। तो सर ईएमएफ भी कितना होगा? 4.5। सो इसका ईएमएफ 4.5 ही होगा क्योंकि हमने ड्रॉप ही 4.5 किया, क्योंकि 4.5 वोल्ट पे जाके वो नल कंडीशन दिखा। अब वो कैसे निकालेंगे वोल्टेज ड्रॉप? वो हमारा फॉर्मूला ये रहा। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला K इंटू एल, और जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही अननोन ईएमएफ होगा क्योंकि वही तो गिरा रहा है, और जितना अननोन ईएमएफ होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसका मतलब ईएमएफ का ही फॉर्मूला क्या मिल गया? K इंटू एन। गॉट इट? दिस इज द वे हाउ वी वर्क। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग काम करते जाएंगे ये चीज आगे की तरफ वर्क करती जाएगी, और ये चीज हमें समझना पड़ेगा। बट पोटेंशियोमीटर को अगर इफेक्टिवली वर्क कराना है तो आपको सबसे पहले एक कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 कंडीशन, मेन सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन अननोन ईएमएफ। पहली बात तो ये लगा गया। हमें नल कंडीशन कहां चाहिए? वेयर वी रिक्वायर द नल कंडीशन? हमें गैल्वेनोमीटर यानी सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सेकेंडरी सर्किट का जो गैंग है, दिस ग्रुप, ये ग्रुप पहले खत्म हो जाना चाहिए इसके खत्म होने से पहले। पता चला योर मेन सप्लाई इज 5 वोल्ट मान लो, और अननोन सप्लाई इज 7 वोल्ट। बताओ भाई, आप खींचते गए, क्या ये कभी गैल्वेनोमीटर नल कंडीशन पे आ सकता है? क्या कभी सेकेंडरी सर्किट में करंट जीरो हो सकता है? नहीं सर, क्योंकि ये 7 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। इसकी 5 वोल्ट सारी खत्म हो जाएगी बट इसकी 7 वोल्ट कभी खत्म नहीं होगी। जब इसका 5 वोल्ट पूरा खत्म हो जाएगा ड्रॉप करने का, क्योंकि ये जो 5 वोल्ट है वो A B के अक्रॉस है। चेक दिस आउट, प्राइमरी सर्किट क्या इंक्लूड कर रहा है? मेन सप्लाई एंड दी वायर। और अगर इस वायर के पास कितनी वोल्टेज जाएगी वो डिपेंड करेगा मेन सप्लाई कितनी है, क्योंकि ये तो वोल्टेज ओके, रेजिस्टेंस भी है जो इसके अक्रॉस सीरीज में लगा हुआ है, बट जो मेन सप्लाई है उसी की वजह से आपके AB वायर के पास वोल्टेज जाएगी। तो AB वायर के पास अगर हम एग्जांपल माने, फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो ये वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो बताइए AB वायर के पास कितना वोल्टेज जाएगा? 5 वोल्ट। तो
AB वायर विल कंटेन 5 वोल्ट इटसेल्फ। तो पूरे AB वायर के पास 5 वोल्ट है, यानी A से लेके B तक 5 वोल्ट गिरा सकते हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी 5 वोल्ट यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है। अब आपके पास कितना है 7 वोल्ट। अब आप आगे जैसे जैसे स्लाइड करते जाएंगे तो वोल्टेज गिरती तो जाएगी, और स्लाइड करते करते आप B तक आ गए, और A से B तक था 5 वोल्ट, क्योंकि मेन सप्लाई वाज 5 वोल्ट, और आपकी अननोन कितनी है फॉर एन एग्जांपल 7 वोल्ट। क्या गैल्वेनोमीटर यानी सेकेंडरी सर्किट में करंट कभी जीरो होगा? नो सर। तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो कंडीशन ये कि मेन सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन दी अननोन सप्लाई। ये आपका सबसे जरूरी एस्पेक्ट है। ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हुआ तो ये कभी नल कंडीशन पे आएगा ही नहीं, और जब ये तक ये नल कंडीशन पे नहीं आएगा तो हम ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप को बराबर नहीं कर सकते। हाँ, ये पता लगा सकते हैं कि कितना वोल्टेज गिरा, हम ये पता लगा सकते हैं कितना वोल्टेज गिरा, V = K × रैंडम लेंथ, बट ये वो लेंथ नहीं होगी जहां पे नल कंडीशन, यानी ये बैलेंसिंग लेंथ नहीं कराएगी फिर, क्योंकि जब लेंथ बैलेंसिंग होगी, जब लेंथ L है तब गैल्वेनोमीटर नल कंडीशन दिखा रहा है, तभी V ड्रॉप EMF के बराबर है, यानी जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही अननोन का EMF होगा। डन। एक सेकंड गलती और सेकंड मिस्टेक जो हम लोगों से हो सकती है, तो एक तो पहली प्रॉब्लम ये होगी, अगर हमने ये गड़बड़ कर दी, अगर मेन सप्लाई अननोन से कम है तो भी हमें कभी भी नल कंडीशन नहीं मिलेगी। एक और बात कर लेते हैं, हमें वोल्टेज क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू अबाउट दी वोल्टेज, ड्रॉप करना है या राइज करना है? ड्रॉप करना है। वोल्टेज गिराएंगे, दोनों की लड़ाई करवाएंगे, तभी तो नल कंडीशन तक पहुंचेंगे। अब अगर ऐसा है तो दोनों के टर्मिनल्स क्या होने चाहिए पर? सेम टर्मिनल। अगर आपने बाय मिस्टेक ये एरर कर दिया इन द प्रैक्टिकल, ये गलती कर दी आपने, पॉजिटिव ऑफ द मेन सप्लाई बट नेगेटिव ऑफ द अननोन सप्लाई, तो अब जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे तो इस बार वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, इस बार वोल्टेज ऐड होती जाएगी, V1 + V2 V1 + V2, और जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो इसकी सारी वोल्टेज इसमें ऐड होती जाएगी, तो 5 + 2 7 हो जाएगी टोटल, अगर ये 2 वोल्ट थी। बट जब हमें उसे ड्रॉप करवाना है, क्योंकि वी वांट द नल कंडीशन, वी वांट टू मेजर, हम ये पता लगाना चाहते हैं उसका ईएमएफ क्या, तो हम इनडायरेक्ट वे में कुछ कैलकुलेशन से कर रहे हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉप द वोल्टेज, और उसके लिए मेन और अननोन सेम टर्मिनल कनेक्टेड होने चाहिए, और यू कैन से अपोजिट पोलैरिटी। तो एक गलती हमसे ये भी हो सकती है। और थर्ड मिस्टेक जो हमसे ये हो सकता है वो सुनना, लेट्स सपोज इसकी जो भी टोटल वोल्टेज है वो बैलेंसिंग लेंथ, वो लेंथ 400 सेंटीमीटर मींस 4 मीटर पे जाके रुकती है, मींस आपको वो लेंथ यानी आपको नल कंडीशन कितने मीटर पे मिलेगी? 4 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, लेट्स सपोज। बट आपने पोटेंशियोमीटर, एज आई टोल्ड यू ना, द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन चेंज फ्रॉम 1 मीटर टू 10 मीटर, इसकी लेंथ 1 मीटर से 10 मीटर तक कुछ भी हो सकती है। अब मान लीजिए आपको लेंथ मिल रही है 4 मीटर पे, यानी 4 मीटर पे जाके नल कंडीशन मिलेगा, बट आपने अपने डिवाइस में केवल 2 मीटर का वायर यूज किया। लो भाई, ये रहा बी पॉइंट, इन योर पोटेंशियोमीटर डिवाइस यू आर जस्ट ओनली यूजिंग 2 मीटर, चेंज 1 से 10 कुछ भी हो सकता है भाई, यहां पे लेंथ आपको मिलेगा, बट आप यूज कर रहे हैं केवल कितना? 2 मीटर, और आपको नल कंडीशन मिलेगी 4 मीटर पे जाके। मिलेगी जरूर कि हमने पोलैरिटी भी सेम रख दी, अननोन ईएमएफ मेन सप्लाई से कम भी है, और बैलेंसिंग लेंथ 4 मीटर पे जाके मिल रही है। बट जब बैलेंसिंग लेंथ 4 मीटर पे मिल रही है, बट आपने लिया वायर में केवल कितना? 2 मीटर, यानी इनसफिशिएंट लेंथ, तो ऐसे केस में भी हम लोग नल कंडीशन पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो ये कुछ एरर्स हैं जो हमें वर्किंग के साथ ही समझने पड़ेंगे। सो आई होप यू गेट कि मैंने जो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है कि हम लोग जॉकी को स्लाइड करते रहेंगे, एंड वी विल स्लाइड और वी विल कंटिन्यू टू स्लाइड टिल द गैल्वेनोमीटर शो नल कंडीशन, और उस लेंथ को हम लोग क्या बुलाएंगे? बैलेंसिंग लेंथ। गॉट इट? सो दिस वाज द वर्किंग। तो ये आपका वर्किंग था, तो डायग्राम आई होप आप लोगों ने पहले बना लिया था, एंड दिस इज द मैथमेटिकल वर्क ऑफ द वर्किंग। तो EMF कितना होगा? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अननोन EMF? इफ आई यूज द वर्ड अननोन EMF, so unknown EMF is equal to K into L, where K stands for, आपने सही चीजें पढ़ चुके हैं बट फिर भी,
K stands for potential gradient. ओके और अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल पर्पस पे बात करूं, न्यूमेरिकल पर्पस, सो फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस K मींस पोटेंशियल ग्रेडियंट। इन हिंदी कितना वोल्टेज गिरेगा पर यूनिट लेंथ। तो हमारा वोल्टेज किसके अक्रॉस गिरता है? पूरे AB वायर के अक्रॉस हम मेन सप्लाई से गिराएंगे। सो वोल्टेज अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB। तो पूरे वायर के अक्रॉस वोल्टेज भाई कितनी गिरा सकते हो टोटल A से लेके B? हाँ गिरेगी कितनी वो तो डिपेंड करेगा अननोन कितना है। जैसे 5 वोल्ट लिया था ना मेन सप्लाई, सो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कितनी जा सकती है? 5 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AB, दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे कि भाई कितना वोल्टेज गिरा पर यूनिट, टोटल लेंथ कितनी है। तो टोटल वोल्टेज कितनी गिरा सकते हैं बाय टोटल लेंथ। ओके फिर इसे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप में यूज करेंगे। सर ये तो किया आ गया, अब काम खत्म। डन। सो दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। बट दिस वाज द वर्किंग। सो आफ्टर द वर्किंग प्लीज इस चीज को भी नोट डाउन और स्टार बना के लिख लेंगे आप लोग। ओके डन। सो दिस वाज द पार्ट जो हमें यहाँ पे समझना है। ओके नाउ एक चीज जो मैं आपसे जस्ट क्विकली डिस्कस करना चाहूंगा और जो हम लोग करेंगे, तो हमें पता चला आफ्टर दिस वर्किंग दैट E is equal to KL. So what we get to know, unknown EMF is equal to K means potential gradient per unit length. तो यहां से बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी? E by K. This L stands for बैलेंसिंग लेंथ कि भाई कहां पे जाके अननोन EMF की वजह से डल कंडीशन मिलेगा। This was your unknown EMF. So this is the balancing length. So how the balancing length relate with the potential gradient? Inversely. ठीक है आपने जो EMF लगा दिया वो उतना ही रहेगा, अननोन है 2 वोल्ट बट रहेगा तो 2 वोल्ट। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि लेंथ अच्छी हो, हमें वो रीडिंग अच्छा सा मिले, पता चलेगा का बैलेंसिंग लेंथ 10 सेंटीमीटर। इमेजिन दैट बैलेंसिंग लेंथ 1 mm। इमेजिन दैट कि आपका बैलेंसिंग लेंथ 1 mm आता है। क्या आप 1 mm को मेजर कर सकते हो? नो सर, 1 mm मेजरेबल नहीं है, शायद हम डिटेक्ट भी ना कर पाए, देख भी नहीं पाएंगे कि कितना चेंज हुआ है। तो पॉइंट इज दैट फॉर मोर सेंसिटिव, यानी सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे अननोन EMF दे रहे हैं। अब अननोन EMF कितना होगा वो हमें लेंथ की फॉर्म में महसूस हो रहा है या दिखाई दे रहा है। तो हम लोग लेंथ को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा। तो हमें जो आउटपुट है, पोटेंशियोमीटर जो हमें आउटपुट दिखाता है, दैट आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। हाँ फिर उसको कैलकुलेशन करके EMF निकाला जा सकता है। और हम लोग इनपुट दे रहे हैं EMF, तो जो भी स्मॉल इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में L मिल रहा है। तो मोर सेंसिटिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, more sensitiveness of potentiometer, K should be low. K लो होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ये आपका, इंपॉर्टेंट नोट दैट कि अगर आप पोटेंशियोमीटर को मोर सेंसिटिव बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव बने, तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट लो होना चाहिए। क्योंकि K जितना लो होगा बैलेंसिंग लेंथ उतनी अच्छी जाएगी और आपको रीडिंग उतना ही अच्छा मिलने वाला है। Got it? So this should be the point, and with that point I am just leaving only one single numerical to you. मैं अब आपके पास केवल एक न्यूमेरिकल लेफ्ट कर रहा हूं, V drop versus balancing length for two potentiometer P and Q. So which of potentiometer would you prefer? Would you prefer for measuring unknown EMF and why? So out of these आप दोनों में से कौन से पोटेंशियोमीटर को अननोन EMF मेजर करने के लिए लोगे जिसका वोल्टेज ड्रॉप वर्सेस, तो दो हैं P and Q. So which of them would you prefer and why? So with that one only single numerical, आज वाले लेक्चर में केवल यही न्यूमेरिकल है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट है. So in the next lecture we will meet with the applications
ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो आज तो ये सीख लिया कि ईएमएफ मेजर करता है, बट कुछ और भी चीजें हैं जो इसमें बहुत हेल्पफुल होता है, तो वो हम मीट करेंगे। सो वन सिंगल न्यूमेरिकल, डू इन योर फेयर नोटबुक एंड प्लीज शेयर योर आंसर ऑन द व्हाट्सएप और ऑन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।